So dear children, every day I am asking tables. So I hope you learn the table up to 20. Now I'm asking to Samir Tamboli. Samir, will you recite table of 15? Samir Tamboli. Yes, Yes, sir. you will recite table of 15. What happened, Samir? Have you learned the table? Your mic is off, Samir. Yes, sir. Sir, I am saying. Ah, yes, come on, start. 15 ones are 15, 15 twos are 30, 15 threes are 45, 15 fours are 60, 15 fives are 75, 15 six are 90, 15 sevens are 15, 15 eights are 120, 15 nines are 135, 15 tens are 150. Okay, there was very small mistake. You said 15 sevens are 1 5. It is 105. Okay, Samir? Well tried. Now I would like to ask Kirti Acharya. Kirti, yes, you learn the table up to 15. Yes, sir. Okay, will you recite table of 13? Yes. 13 ones are 13, 13 twos are 26, 13 threes are 35, 13 fours are 52, 13 fives are 65, 13 sixes are 78, 13 sevens are 91, 13 eights are 104, 13 nines are 117, 13 tens are 130. Oh, very nice, nice progress by Kirti Acharya. Then I would like to ask Sampriti. Sampriti, you learn the table up to Sampriti. Your mic is off. Sampriti, your mic is off. Yes, sir. Yes, you learn the table up to 15. Yes. Yes, sir. Okay, now you will read 12 table. Come on. 12 ones are 12, 12 twos are 24, 24. Hmm. 3s are 20, 36, 12, 4s are 46, 48, 12, 5s are No, you are not confident. Why? Sampriti, you have to learn the table up to 15. Okay, next time I will ask you. Sarthak Gunjawale, will you recite a table of 15? Sarthak, Yes, sir. come on. 15 ones are 15, 15 twos are 30, 15 threes are 45, 15 fours are 60, 15 fives are 75, 15 six are 90, 15 sevens are 105, 15 eights are 120, 15 nines are 135, 15 tens are 115. Okay, well done, Sarthak. One more student I will take. Sarthak, please check in your house. TV is on. No, Uh, ma'am. No, sir. मेरा वाइफ क्लास है. okay, yes, yes. I know your younger brother is attending. Dhyana, I can see you. Dhyana, will you recite a table of 14? यस सर। Come on. सर पर मुझे थोड़ा थोड़ा ही आता है। Okay. आपने कहाँ तक याद किया टेबल्स को? 14। 14 तक. चलो आप 13 का बोलो फिर. सर मैं 14 का बोलूं? चलो 14 का बोलो. 14 ones are 14, 14 twos are 28, 14 threes are 42, 14 fours are 56. 56,
14 5s are 70, 14 6s are 84, 14 9s are 91, Sevens are 14 sevens 14 are 7s 91. are 14 8s Six are are 118, no 112. 112, 14 14 nines are 126. 126, 14 10s are 140. Still you have to practice more. Yes, Dhyana? Okay, dear children. So repeatedly I'm asking you the tables every day, 5 students getting chance. So be prepared. Anytime I will ask you the tables. Now I'm asking up to 15, but you should learn up to 20. I hope you will learn up to 20 or beyond 20. So I hope you got the link through the Google Calendar, Google Meet, WhatsApp, even though only 40 students have joined. And I saw in last period, 51 students were there in the class. Please do not miss any class. Okay. So as per our schedule, today we are dealing with a clock reading. Last period we already started. So this period we are reading a clock, 12-hour clock and 24-hour clock. So one by one I am giving you the chance. If you get chance, then and then only you have to unmute your mic and you have to answer. Okay. Now I'm showing you the clock. If it is visible, please pin up me. आप मुझे पिन अप करेंगे. I hope it's visible to you one and all. Now Yes. I'm showing you there's some time. Now this question goes to Manish Meena. Manish Meena, please tell me the time. Manish Meena. Manish Meena. 9:30. 9:50. 9 o'clock 15 minutes. A quarter past 9. है ना, अलग अलग तरह से मैंने ये रीडिंग बताया था. 15 minutes past 15 minutes. Yes, your answer is right. Now you will write here AM or PM. आप यदि आपको AM और PM जब कभी लिखना पड़ता है तो आप क्या लिखोगे, ये मैं मेधांश से पूछना चाहता हूँ. मेधांश, अभी now just Manish Meena said this is 9 o'clock and 15 minutes. Okay, तो आप यहाँ पे AM लिखोगे या PM लिखोगे? सर AM. हाँ, तो रात के 12 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक जो भी टाइम होता है, जो मॉर्निंग कहलाता है, उस समय में आपको AM लिखना है. संप्रीति इधर ध्यान दो, मैं देख रहा हूं. जो भी बच्चे घर में खेल रहे मुझे दिखाई देते हैं. सो यू आर राइटिंग AM. वेरी गुड मेदांश, योर आंसर इज राइट, AM. अब मैं दूसरा टाइम शो करूंगा और मैं श्रेष्ठ पाल से पूछूंगा. श्रेष्ठ पाल, आप मुझे बताओ कितना टाइम हुआ है. श्रेष्ठ पाल, आप घड़ी को देखो और मुझे टाइम बताओ. श्रेष्ठ पाल. 12:30. 12 o'clock 30 minutes. 12:30. वेरी गुड. आप मुझे यहाँ पे PM लिखोगे कि AM ले. दिस इज अ डे टाइम. अब ये दोपहर का टाइमिंग का मैं टाइम बता रहा हूँ, तो मुझे बताएगा पार्थ पाटनकर. पार्थ पाटनकर, प्लीज मुझे बताइए कि आप यहाँ पे AM लिखेंगे या PM लिखेंगे? सर PM. PM. तो सभी बच्चे ध्यान रखें, जब दोपहर हो जाती, 12 o'clock हो जाता है, जैसे आपका ब्रेकफास्ट और लंच हो जाता है 12 o'clock, उसके बाद का जो भी टाइम होता है उसको PM लिखना है. ठीक है, वेरी गुड. वन मोर स्टूडेंट को मैं चांस देना चाहूंगा, वो है सही. सही, आप टाइम बताओ मुझे.
नाउ दिस इज द टाइम। सही, आप घड़ी को ध्यान से देखो और बताओ। सही रापरती, आपको घड़ी दिखाई दे रही बेटा? Yes, sir. हाँ, तो आप बताइए व्हाट इज द टाइम नाउ? 4:45. 4:45। उसको अलग तरह से कैसे रीड कर सकती है? आपको आता है सेकंड तरह का जो मैंने सिखाया था? 4:45 इज द करेक्ट। और दूसरे तरीके से आता है? No, sir. 3:45 है. 4:45 बोला है उसने, ये 3:45 है। सही रापरती, अभी 4 o'clock हुआ नहीं है, अभी 4 o'clock को टाइम बाकी है। वेरी गुड पार्थ पाटंकर, वेरी गुड। तो मैं किससे पूछना चाहूंगा अभी? मानवी, जानवी वाल्मीकि। Yes, sir. यस, कैन यू रीड द टाइम? 4:45. वेरी गुड। अभी 4:45 को आप AM लिखेंगे कि PM लिखेंगे? ये डे टाइमिंग का है, ये दिन का ही है। आप क्या लिखोगे? AM नहीं, जब दिन का जो टाइमिंग है ये दोपहर का है तो इसको PM लिखेंगे। और 4:45 यदि मैं मॉर्निंग का बताऊंगा, अर्ली इन द मॉर्निंग, अंधेरे में ही, तब उसको AM लिखेंगे। वेरी गुड जानवी, इसको अलग तरीके से कौन रीड करेगा? मैंने दूसरा एक मेथड बताया था, आप हाथ ऊपर करो, मैं उसी स्टूडेंट को चांस दूंगा। इसको पढ़ने का और एक तरीका। ओके जानवी बोलो। जानवी, इफ यू आर रेजिंग योर हैंड प्लीज टेल मी। हाँ बोलो। 4:45. 4 नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, पास तो नहीं है। 45 मिनट past 4. Sir, हाँ, वापस 3:45 45 past 3. 45 पास 3 o'clock। और इसमें सिंपल क्वार्टर्स में बोलेंगे तो 4:45 o'clock। 2 का मतलब होता है अभी बजना बाकी है, बजे नहीं है। 4:45 o'clock, 4 बजे को 1 क्वार्टर्स बाकी है। अथर्व पाटिल बोलो, मैंने क्या बताया? Yes, sir. हाँ बोलो, मैंने क्या बताया? अभी तक 3 बजने को बाकी है। नहीं, 4 बजने को टाइम बाकी। 3 o'clock 45 मिनट्स हो गया। 4:45 o'clock, ये याद रखना है। यस अर्नव गोडसे को मैं टाइम पूछ रहा हूँ। यस सर। Now this is the time, if it is visible to you, आप ये टाइम बताइए, अलग अलग सिस्टम से बताइए, मैंने जो पढ़ाया बताइए। व्हाट इज द टाइम नाउ? 8:15। 8 o'clock 15 मिनट्स। आवर्स और मिनट अलग बोलना। और इसको दूसरे तरीके से कैसे बोलते हैं? 8:15। ओके, 8:15 o'clock। ओके ओके, वेरी गुड। अब ये मॉर्निंग के है तो इसको AM लिखेगा या PM लिखेगा? AM। AM, अर्ली इन द मॉर्निंग जब होता है उसको AM लिखेंगे। वेरी गुड। अब ये शाम के होंगे 8 o'clock तो क्या लिखेगा? PM। वेरी गुड, PM लिखेगा। तो आपको AM PM लिखना आना चाहिए और वहां पे कितना टाइम हुआ है, आवर्स एंड मिनट्स बताना आना चाहिए। अब मैं दूसरे स्टूडेंट से पूछ रहा हूं, प्लीज ध्यान दीजिए। मैं रिशान से पूछना चाहता हूं। रिशान कैमरा ऑन करे और बताए मुझे। रिशान गुंजाल, कैन यू हियर मी? यस रिशान, प्लीज टेल मी द टाइम नाउ। रिशान, आप ये मुझे टाइम बताइए। रिशान, आपको घड़ी दिखाई दे रही है? रिशान, माइक इज ऑन। ओके, 20 minutes.
Yes, 10 o'clock 20 minutes, 20 minute past 10, 20 minute past 10 o'clock. ये मॉर्निंग के तो आप AM लिखोगे या PM लिखोगे? AM. AM लिखोगे, वेरी गुड। ये नाइट के होंगे तो क्या लिखोगे? PM. वेरी गुड। तो आप सभी को AM PM, मॉर्निंग का हो तो AM लिखना है और इवनिंग के हो तो PM लिखना है। तो आप टीवी पे देख लेना, वहाँ पे दिखाई देता है जब न्यूज चलता है AM और PM वहाँ पे आ जाता है। अभी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, प्लीज ध्यान दो। श्रेष्ठपाल मेरे तरफ देखो, मानसी सामने देखो। जो बच्चे सुन नहीं रहे मैं उनको देख रहा हूं, मुझे यहाँ पे कैमरा में सब दिखाई दे रहा है और मैं इसे रिकॉर्ड भी कर रहा हूं। जो बच्चे ध्यान नहीं दे रहे उनको पता चलेगा। आपके स्क्रीन पे देखो, मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूं। आप कैमरा ऑन करो, आपका ध्यान है या नहीं मैं पता कर रहा हूं अभी यहाँ से। नाउ हमारा नेक्स्ट टारगेट है, जब आप एयरपोर्ट पे जाते हो, जब आप रेलवे स्टेशन पे जाते हो, या फिर आप टीवी देखते हो, या फिर आप मोबाइल में भी देखो, कुछ जगह पर 24 आवर का क्लॉक यूज होता है। ये 12 o'clock रात को 12 बजे, नाइट 12 o'clock स्टार्ट होता है और दोपहर के 12 o'clock होते ही फिर से 1 2 3 स्टार्ट होता है। रात को 12 बजे 1 o'clock 2 o'clock 3 o'clock, इस तरह से। अभी मॉर्निंग के 9 o'clock 53 मिनट हो गए, फिर अभी 10 o'clock होगा थोड़ी देर में, फिर 11 o'clock, फिर 12 o'clock। अब जैसे ही दोपहर के 12 बजेंगे उसके बाद शुरू हो जाता है 1 o'clock। फिर क्या शुरू हो जाता है? फिर से 1 o'clock। लेकिन जब हमको पूरे दुनिया में जाना है, दूसरे कंट्री में जाना है, तब हमारा ये टाइम टेबल यूज नहीं होता है। जब हमें रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पर जाना है तो वहां पे 24 आवर्स का टाइम होता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, आप इधर ध्यान दो। आप मुझे ये बताएंगे, कौन बताएगा मुझे अभी? ये बताएगी ईशा ठाकुर। व्हाट इज द टाइम नाउ? ईशा ठाकुर को मैं ये पूछ रहा हूँ, व्हाट इज द टाइम नाउ ईशा ठाकुर? 12 o'clock. हाँ 12 o'clock. 12 o'clock। अभी आप ऐसे इमेजिन करो कि दिस इज अ 12 o'clock। अभी 12 बजे हैं, दोपहर के 12 बजे है। जब हम 24 आवर की क्लॉक यूज करते उसमें AM PM नहीं लिखना है। जब 24 आवर का क्लॉक यूज करेंगे हम AM PM यूज नहीं करेंगे, ओनली आवर्स यूज करेंगे। क्या करेंगे? आवर्स यूज करेंगे। अब इसको लिखते, अभी 12 आवर्स की रीडिंग कर रहे हैं, ऐसा समझो। नाउ व्हाट इज द टाइम? 12 आवर्स। इसको कैसे रीड करेंगे? 12 आवर्स। अभी आगे जाता हूं मैं। सर यस, हमें कैसे पता चलेगा कि ये 12 आवर्स की क्लॉक है या 24? हाँ बिल्कुल, आपको क्वेश्चन जब आएगा, या इसकी डिजिटल क्लॉक भी होती, मैंने उसका वीडियो डाला है, आप देख सकते हैं बाद में, पहले समझ लीजिए। वेरी गुड क्वेश्चन ध्याना ने पूछा है। तो यहाँ पे हमारे पास तो डिजिटल क्लॉक है नहीं, तो अभी ध्याना के लिए ये क्वेश्चन है। ध्याना, अभी 12 o'clock से हमको 24 आवर क्लॉक में जाना है। 12 के बाद में 1 आ जाता है, तो 12 शरद क्यों है? I cannot hear you. Not. सर आपकी आवाज नहीं। हाँ Sir, your voice is breaking. हेलो, आपको आवाज आ रही है? Yes, sir. ओके। तो पहले मैंने ध्याना से पूछा था, शायद नेटवर्क चला गया था। ओके ध्याना, अभी 12 o'clock से मैंने थोड़ा सा आगे गया हूं। ध्याना प्लीज ध्यान दो, 12 o'clock के बाद आपको ऐड करना है। 12 o'clock से 1 o'clock 1 आवर ऐड करना है। तो कितना हो जाएगा 12 में 1 आवर ऐड करोगे तो?
Sir, 1 o'clock. नो, 13 12 आवर्स। देखो हम 12 o'clock को आवर्स बोले हैं अभी। 12 आवर्स में 1 आवर्स ऐड करना है। ऐड 13. 13, वेरी गुड। जब आपको यहाँ पे 1 o'clock हो जाएगा, डे का 1 आवर हो जाएगा, तो इसको हम पढ़ेंगे 13 आवर्स। क्या पढ़ेंगे? 13। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, 2 के ऊपर आवर है डे, तो 12 के बाद 2 आवर्स आप ऐड करोगे तो कितना टाइम हो जाएगा, आवर्स में बताना है। 14. 14 आवर्स, वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया आपने। इसका मतलब आपको 24 आवर घड़ी समझ में आ रही है अभी। अब मैं दूसरे बच्चों से पूछूंगा, मैं पूछूंगा अभी माही का चांस हो गया है, इसका किसको चांस नहीं मिला अभी? दिव्यांका को चांस नहीं मिला। दिव्यांका और उन्नति रेडी रहेंगे। दिव्यांका आप बोलो। Yes. दिव्यांका, अभी मेरे पास ये टाइम हो गया है, ये देखो, पहले ये टाइम बताओ कितना हुआ है। सर 16 o'clock. 16 o'clock। आपने तो डायरेक्ट बोला, बहुत अच्छा। कैसे बताया आपने, बताओ। पार्थ भास्कर आपका गलत आया है, ठीक है। दिव्यांका, आपने इसको 16 o'clock नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे 16 आवर्स। क्या बोलेंगे? 16 आवर्स बोलेंगे। हाँ बोलो, आपने कैसे किया ये बताओ। सर मैंने 24 आवर्स में किया, तो 12 के बाद मैंने 4 काउंट किया। हाँ, 12 के बाद आपने 4 आवर्स और काउंट किए, यहाँ से 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर और 4 आवर्स। बिल्कुल सही, आपने ये ऐड किए। नाउ द नेक्स्ट चांस गोज टू उन्नति। उन्नति, अभी आपको पूछूंगा। नाउ योर क्वेश्चन इज लिटिल बिट चेंज। आपको मैंने ये क्वेश्चन दिया है। उन्नति आप बताओ, अभी पहले घड़ी में क्या टाइम है ये बताओ पहले। व्हाट इज द टाइम? 10 o'clock. 10 o'clock। लेकिन मैं बताऊंगा आपको ये 24 आवर्स में बताना है। दिस 10 o'clock इज नाइट का है, रात के 10 o'clock है। तो आप 24 आवर्स में करने के लिए आप क्या करोगी, 12 आवर्स में ये 10 आवर्स डालोगी। वेरी गुड मैदान। दिव्यांका बताओ। उन्नति, उन्नति क्या करोगी आप? जब हमको रात के 10 o'clock को बताना है 24 में, तो क्या बताओगी? Sir, I will add 10 and 12. यस, तो कितना आएगा आंसर? 22. 22 आवर्स। वेरी गुड, योर आंसर इज एब्सोल्युटली राइट। तो आपको ये पता चल गया, जब हमको 12 आवर्स में टाइम बताना है, वो आपको बताएंगे, क्वेश्चंस में रहेगा कि आपको शाम के 5 बजे, इवनिंग 5 o'clock, तो कितना टाइम हो जाएगा ये आयान मैटी बताएगा मुझे। आयान मैटी, नाउ दिस इज योर टर्न। शाम के 5 बजे आपको 24 आवर्स में बताना है। बताओ कितने बजेंगे? इवनिंग 5 o'clock। आयान मैटी बोलो। Sir, 17 hours. वेरी गुड, एक्सलेंट आंसर, 17 आवर्स, एक्सलेंट। इसके बाद मैं चांस दूंगा हर्षद माने को। यदि वो कैमरा ऑन करेगा तो मैं आपको चांस दूंगा। हर्षद माने, यस, हर्षद माने, यस, आप बताएंगे मुझे 20 आवर्स हो गए। क्या हो गया अभी टाइमिंग? 20 आवर्स हो गए, तो कितने बजे शाम के, ये बता सकता है? 20 आवर्स। 20 आवर्स मतलब कौन सा टाइमिंग? ट्वेंटी माइनस 12 करो। 20 में से 12 माइनस करो। हाँ, 8 o'clock. हाँ, वेरी गुड। देखो मैंने आपको अलग तरह से क्वेश्चन पूछा और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया कि शाम के 20 आवर्स हो गए मतलब 8 PM हो गया। आपको ऐसे उल्टे पुल्टे भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और मैंने ये क्वेश्चंस आपको गूगल क्लासरूम में दिया है। फिर से बता रहा हूँ, जब आपके पास 12 आवर्स की
घड़ी होगी, आपको 24 आवर में कन्वर्ट करना है और 24 आवर्स का टाइमिंग दिया है तो आपको 12 आवर्स में कन्वर्ट करना है। नाउ अभी मैं आपको कुछ डिस्प्ले करता हूं और आप उसके आंसर देने की कोशिश करें। ओके, मैं कुछ दिखाना चाहता हूं। लेट्स सी। तो यस, क्वार्टर पास्ट 8 o'clock का मतलब क्या है? 1 मिनट, क्या नाम है इसका? आप कीर्ति, कीर्ति, कीर्ति वेट, कीर्ति वेट, कीर्ति वेट। I think some network issue is there. I'm unable to present it. Wait, some network issue is there. Please wait 2 minutes. सर अभी दिख रही है। सर 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 आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपका आवाज। Hello, can you hear me now? यस Yes, Hello? Okay, Yes, okay, sir. thank you. Just wait. अभी थोड़ा सा नेटवर्क चला गया था, प्लीज वेट करिए, ठीक है? ओके, तो मैं ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, आप पहले ध्यान दीजिए। मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूं और आपको इस पर प्रयास करना है। इस तरह के मैं क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं, प्लीज वेट करो। ये देखो, आपको दिखाई दे रहा है? मैं इसको बड़ा कर रहा हूं अभी, ठीक है? फिर बच्चे बोलेंगे सर दिखाई नहीं दे रहा है। अब दिखाई दे रहा है? Yes, sir. दिखाई दे रहा है? Now Yes, sir. here we see questions. Please wait now. Tick. Convert the following into 12 hours clock. आपको ये दिया है नहीं आ 6 रही। और प्लीज बोलो मत बीच में अभी। 6 और 6 and 50 hours। अभी ये मॉर्निंग के, जब भी ये मॉर्निंग के आवर्स में लिखा है तो आपको AM में लिखना है। 6 hour and 50 minutes, 6.50 hours मतलब 6 hours and 50 AM, that is in the morning। सर ये लिखना है? यस, ये आपको सब लिखना है, मैं बाद में बताता हूँ, आप पहले सुन लो। रात में 24 आवर्स कभी नहीं बचते। इट्स बिकम, आपके घर में किसी कहीं देखा होगा तो 00 and 00 आवर्स होते, दैट इज मीन नाइट। सर इट इज सीन इन मोबाइल फोन। हाँ, डिजिटल जिसके पास क्लॉक होगी तो रात के जब 12 बजेंगे तो यू कैन सी 0000 आवर्स, दैट इज मिडनाइट। 12 o'clock, दैट इज द PM, उसको मिडनाइट बोलते हैं। एंड आफ्टर 12 AM स्टार्ट, यहाँ पे लिखा है 12 PM बिकॉज ये नाइट में। अब देखो मॉर्निंग 2 o'clock, दैट इज 2 hours and 30 hours, 2 hours and 30 minutes। ये 24 आवर क्लॉक में दिया है पहला आंसर। जब ये आवर्स में लिखा है ये 24 है और अभी हमको AM और PM लगाना है, तो 2 hours और 2.30 hours मतलब 2 hours and 30 minutes। अभी मैंने हर्षद से पूछा था 20 आवर्स मतलब क्या होता है? 8 o'clock in the evening, that is 8 PM। फिर मैंने और एक स्टूडेंट से पूछा था 17 hours and 20 minute, that is 17.20 hours मतलब इवनिंग के आपको 5 hours, that is 5 o'clock and 20 minute। जब आपको यहाँ पे बड़ा नंबर आता है 12 से बड़ा, तब आपको उसमें से माइनस करना है, तब आपको ये टाइम आ जाएगा, दैट इज इन द PM। अभी आप दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन 24 आवर क्लॉक। अभी आपको 24 आवर क्लॉक में मैंने क्वेश्चंस पूछे। 1:20 PM, दोपहर के 1:20 हो गया।
व्हेन वी आर राइटिंग इन आवर्स 24 आवर्स में लिखेंगे तो 12 में क्या डालेंगे हम 1 + 20 दैट इज 13 आवर्स एंड 20 मिनट्स 13.20 आवर्स। इसमें मिनट नहीं लिखते हैं। शाम के 6 o'clock 5 minutes है। What we will do in 12? We will add 6 + 12, 18.05 hours. So you all will practice this. आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो मैं आपको एक लाइव वर्कशीट की लिंक भेजूंगा, तो आपको ये पता चलेगा कि आपको कन्वर्जन आता है नहीं। ये मैंने सारे सॉल्व करके दिए, यहाँ पे दिखाई देगा। 10 minutes बिफोर 9:15, अभी 9:15 को हमने स्टार्ट की सपोज क्लास, 10 मिनट्स पहले ज्वाइन होना है, दैट इज 9 o'clock 5 minutes। 15 मिनट्स बिफोर 4:30, 4:30 से 15 मिनट माइनस करना है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में प्लस माइनस करना है। ये क्वेश्चंस तो आपने किया है। 10 मिनट्स टू 8 o'clock, 25 मिनट्स पास्ट 12। आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे दिए ये शीट में, आप ये नीचे वाला नहीं करेंगे, प्लीज ध्यान रखिए। चैप्टर नंबर 5 आप नहीं करेंगे, चैप्टर नंबर 4 का ही आप करेंगे। बस इतना ही मुझे बताना था। अब मैं इसको वापस कर रहा हूँ, वापस आता हूँ। अभी किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप वो पूछिए पहले। 12 आवर्स और 24 आवर्स। हाँ आयन पूछो। सर आपने जो बोला ना डिजिटल वॉच हाँ क्लॉक और वॉच में, उधर जब 10 o'clock बजते हैं तो मुझे 00 और 10 ही दिखता है। 0 में आपकी प्रॉब्लम वॉच में है, फिर 00 और 10 ही दिखता है। तो मॉर्निंग के 10 o'clock बजेंगे तो 10:00 दिखाई देगा, और रात के 10 o'clock बजेंगे तो कितना बजेगा 22:00 दिखाई देगा। आपको क्लॉक में सेटिंग करनी पड़ेगी। हाँ सर मुझे सब बोलो। उल्टा दिखता है। अभी 21 का है और जब मैंने टाइम चेक किया तो वही आता है टाइम। क्या आता है? अभी कितना बजा आपके घड़ी में बताओ, आपके घड़ी में कितने बजे बताओ? हाँ 10:20। 10:20 हो गया। सर नहीं आपके आवाज नहीं आ रही। सर वो 10 मिनट आगे अब मैं सेट करता हूँ उसे, पर वो जब मैं स्टार्ट करता हूँ तब वो रीसेट हो जाता है फिर से। तो आप घड़ी रिपेयर करा दिए। हाँ गौरी कुछ पूछना चाहती। गौरी पूछो बेटा। गौरी एंड शांभवी दे आर रेजिंग देयर हैंड्स। यस गौरी। गौरी आपका कैमरा ऑफ है। गौरी आई कांट हियर यू। सॉरी गौरी, मुझे आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है, फिर से रिपीट कर लूं। गौरी I have network issue. ओह या आई नो, दैट्स व्हाई मैं आपको चांस इसीलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि हम देख रहे 2-4 पीरियड से आपका यहाँ पे नेटवर्क नहीं रहता। म्यूट करो, म्यूट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। गौरी म्यूट करो। हाँ यस, कौन है बताइए। हाँ बोलो। मेदांश खैरे, हाँ बोलो। मेदांश खैरे बोल रहा है, प्लीज वेट करो, मेदांश को बोलने दो। हाँ बोलो। सर अगर दोपहर के 12 बजते और उसे हम नून कहते हैं, तो रात के जो 12 बजते हैं उसे क्या कहते हैं हम? उसको मिडनाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? मिडनाइट। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा मेदांश ने। दोपहर को नून कहते हैं तो रात के 12 बजे को मिडनाइट कहेंगे। कौन क्वेश्चन पूछ रहा है? प्लीज हाथ ऊपर करो। कहना है मुझे ये जानना है कि रेलवे स्टेशन पे 24 आवर्स का क्लॉक क्यों होता है और हमारे घर में 12 आवर्स का होता है। रेलवे हमारे इंडिया में जो क्लॉक यूज करते हैं, जैसे कि रेलवे
कभी नॉर्थ ईस्ट इंडिया से चलती, नॉर्थ ईस्ट मतलब आसाम, मेघालय से लेकर इधर गुजरात तक, तो वहां से लेकर यहाँ तक थोड़ा सा जो है टाइमिंग में अंतर आ जाता है। वहाँ पे सुबह जल्दी हो जाती है, गुजरात और राजस्थान में थोड़ी लेट हो जाती है, करीबन 1 आवर का डिफरेंस होता है। इसलिए पूरे इंडिया में रेलवे और एरोप्लेन जो है 24 आवर्स के हिसाब से चलती है। ठीक है आयन रानी? यस सर। हाँ, ध्याना बोलेगी, ध्याना बोलो। AM और PM का फुल फॉर्म क्या है? हाँ, मैं वो आपको भेज देता हूँ आपको। AM एंटी मेरिडियन एंड प्राइम मेरिडियन। किसने बोला अभी ये? कौन बोला? बताओ बताओ। ध्याना बजाना। अभी कोई आंसर भी बता रहा था, बताओ। शाम्भवी ने बोला। वेरी गुड, वेरी गुड। AM एंड PM, वेरी गुड। हाँ कीर्ति पूछो। क्वार्टर पास 8 o'clock क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? कौन सा 8 o'clock? क्वार्टर पास 8 o'clock का मतलब? क्वार्टर टू 8 o'clock। क्वार्टर, यस सर। ओके, मैं अभी यहाँ पे आपको शो करता। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कीर्ति ने, आप ध्यान दो। मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, प्लीज ध्यान दो। देखिए, now this is 8 o'clock and 15 minutes. It is correct, Kirti? 8 o'clock and 15 minutes. Okay. So how we will read it? How you will read it? A quarter past 8. मतलब 1 quarter. From 12 to 3, this is the 1 quarter. 3 to 6, this is another quarter. From 6 to 9, this is another quarter. This is 1 quarter and this is another quarter. It's made up. सिद्धि गोड से प्लीज म्यूट करें। ओके, तो आप इसे रीड करते समय कीर्ति, क्वार्टर पास्ट 8 o'clock, 8 o'clock 15 minutes, और इसको 24 आवर्स में बोलेंगे 8.15 आवर्स। अब आपका और एक क्वेश्चन था उसमें, क्वार्टर टू 8, बिल्कुल सही क्वेश्चन था। नाउ दिस इज द टाइम, एक्चुअली व्हाट इज द टाइम? कैन यू रीड दिस? आप ये टाइम रीड करके बताओगे मुझे? 7:40. Yes, very good. This is a 7:45, that is 7 o'clock 45 minutes. लेकिन इसको हम बोल सकते 1 quarter is less to 8 o'clock. तो जब अगले वाले आवर्स के पास जाएंगे, अगले वाला टाइम आने वाला है, तब हम बोलेंगे 2. So we will read this as quarter to 8 o'clock. कीर्ति समझ में आया? क्वार्टर टू 8 मतलब 8 o'clock को 1 quarter अभी बाकी है, हुआ नहीं है। Actually the time is 7 o'clock 45 minutes. But as you ask, सर क्वार्टर टू क्या होता है ये? तो क्वार्टर टू 8 मतलब 8 o'clock को 1 quarter अभी टाइम बाकी है, दैट इज मीन्स 7 o'clock and 45 minutes हो गया। सही बोला उन्नति? इज इट राइट नाउ उन्नति? यस सर। यस, इसको बोलते हैं क्वार्टर टू 8। और एक एग्जांपल मैं बताऊंगा। सर आई हैव अ क्वेश्चन। एंड नाउ हियर इज अ वन मोर। नाउ इसको कैसे पढ़ोगी? कीर्ति बताएगी। इसको कैसे पढ़ोगी कीर्ति? 11:45। अभी जो मैंने बताया उसको कैसे पढ़ोगी फिर? क्वार्टर टू 5। क्वार्टर टू 12 कैसे पढ़ोगी? क्वार्टर टू 12 बजने को 1 quarter बाकी है। दिस इज क्वार्टर टू 12। वेरी नाइस। सो अब मैं इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पहले ध्यान दीजिए, आपको मैंने ये जो शीट शेयर की है और बहुत छोटे 2-2 मिनट के वीडियो भेजे, 2 से 3 मिनट के, आप उसको ध्यान देंगे तो आप
सिद्धि गोडसे से रिक्वेस्ट है कि बीच में वो माइक ऑन ना करें। अब मैं अगला क्वेश्चंस आपको देता हूं। आपको आपके घर में ये कैलेंडर होगा, किसी के घर में मराठी में होगा, हिंदी में होगा, इंग्लिश में होगा, मुझे नहीं पता आपके घर में किस में। ये कैलेंडर आपको पढ़ाई करनी है। और अभी अगस्त मंथ इज गोइंग ऑन, पूरा ध्यान दो। अगस्त मंथ में कितने संडेज है, कितने मंडेज है, कितने सैटरडेज है, कौन से दिन हॉलीडेज आता है, इसका एक वर्कशीट मैं आपको भेजूंगा। 3rd क्लास में आपकी एक एक्टिविटी हुई थी, कैलेंडर एक्टिविटी, इसका भी मैंने वीडियो डाला है। तो मैं अभी यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछना चाहूंगा और वो मैं पूछूंगा अविरल को। अविरल, यस सर। हाउ मेनी डेज आर देयर इन अगस्त मंथ? अगस्त मंथ में कितने डेज है आप बता सकते हो? सर 31 days. 31 डेज। और हाउ मेनी डेज आर देयर इन 1 वीक? 1 वीक में कितने डेज होते हैं आप बताओ? 7 days. ओके, अभी अविरल म्यूट करेगा और मुझे बताएगा कौन नया स्टूडेंट कौन है, मुझे कभी दिखाई नहीं। श्रेया सालुंके, श्रेया सालुंके, यस सर। आपको ये कैलेंडर मेरा दिखाई दे रहा है? आप पिन अप करिए, कभी कभी नहीं दिखाई देता है। यस सर। आप कैमरा ऑन करोगी? यस सर। करो, मैं आपको रिकॉर्ड। अब बताओ मुझे, ये संडे को कौन से डेट आ रहे हैं? संडे को जरा बताना मुझे, आपको दिखाई दे रहा है क्या संडे को कौन से डेट आ रहे हैं? यस सर। हाँ, 8, 15, 22, 29. कितने संडे आ रहे हैं इस बार? अगस्त में कितने संडे? 5. 5 संडेज आर देयर। वेरी गुड। अभी हर्षिता बताएगी मुझे। हर्षिता, यस कितने वेडनेसडे आ रहे हैं? आप जरा इसको देखिए, कितने वेडनेसडे आ रहे हैं आप? 4 4 आ रहे हैं। उसके डेट्स बताओ मुझे, डेट्स बताओ। 11 18 25 वेरी गुड। तो इसका मतलब आपको कैलेंडर रीड करना आता है। वेरी नाइस हर्षिता। नाउ आई वुड लाइक टू आस्क जिनको चांस नहीं, यस यस वी आनंद, विजाग आनंद, विजाग आनंद। और 2 डेट्स है इसमें जिसको रेड किया है, वो कौन से दिन आते हैं जो 2 रेड दिखाई दे रहा है? वो डेज का नाम बताइए मुझे। Monday, Thursday. मंडे एंड थर्सडे देयर इज द रेड वन इज, वहां पे हॉलीडे होगा। वेरी गुड। तो आपको मैं इसका एक शीट भेजूंगा, इंटरेक्टिव शीट्स, वो कैलेंडर की स्टडी करनी है और कैलेंडर के ऊपर जो क्वेश्चंस पूछे हैं आपको उसका आंसर देना है। तो आज की क्लास आपको समझ में आ गई? Sir, I have a question. Yes, sir. I have Sir, I have a question. आप क्वेश्चन जरूर पूछिए। आज मैंने क्या पढ़ाया? आज मैंने क्या पढ़ाया ये बताएगी मुझे वैष्णवी ढोरे। पहले मैंने क्या पढ़ाया ये वैष्णवी बताएगी। वैष्णवी है? क्लॉक में क्या पढ़ाया मैंने बताओ? Sir, timing. टाइमिंग, कैसा टाइमिंग पढ़ाया? Sir, past and quarter. पास्ट एंड क्वार्टर। और क्या पढ़ाया मैंने? 12 आवर्स एंड 24. आवर्स वाली घड़ी रीड कैसे करना है। वेरी गुड। और कैलेंडर का क्या चीज पढ़ाई ये मुझे बताएगी। कौन बताएगा? इसको चांस दिया था मैंने, माही को दिया। अभी किसको चांस नहीं मिला, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। शांभवी बोलो। शांभवी, मैंने कैलेंडर का की कौन सी चीज पढ़ाई मैंने? कैन यू हियर मी? हाँ बोलो, कैलेंडर की कौन सी चीज पढ़ाई मैंने? ओके शांभवी, आई थिंक हम बहुत दिनों से आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि कुछ नेटवर्क इश्यू है। शांभवी, आई कांट हियर यू। सर जो आपने वर्क मनीष मीना, आप इसमें नहीं बोलोगी। मनीष मीना, मनीष मीना, मानसी वेमुराय, मैं आपको चांस दे रहा हूँ। ओम खत्री, मैंने कैलेंडर का क्या क्वेश्चन पूछा, क्या बताया बताओ?
सर आपने ये पूछा था कि इस अक्टूबर में कितने हैं, और आपने ये भी पूछा था कि वेडनेसडे कितने हैं। ओके, ये अक्टूबर मंथ नहीं था वो, ये अगस्त मंथ था। हाँ, आप बहुत जल्दी भूल गए। ठीक है, तो अभी आपको मेरी बात सुननी है। मैंने गूगल क्लासरूम में छोटे वीडियो डाले हैं 24 आवर 12 आवर्स के, एक कैलेंडर का भी क्वेश्चंस मैंने डाला है। आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे। इसके ऊपर मैं एक शीट आपको भेजूंगा, फिर वो आपको करनी है। जिसको मेरी बात समझ में आई वो क्लास चुपचाप छोड़ेगा, कोई भी बाय नहीं बोलेगा। जिसको डाउट पूछना है वो रुकेगा। सर वीक बताया सर। Please raise your hand. If you raise your hand, I will give you chance. Yes. First Vaishnavi. First Vaishnavi. सर आपने वो भेजा है ना होमवर्क, वो जेरोक्स निकालना है, उसका क्या बुक में लिखना है। आप उसको डायरेक्टली नोटबुक में उसको पढ़ो, समझो और फिर लिखो। जेरॉक्स करने की कोई जरूरत नहीं, आप देख के भी लिख सकते हैं। आपकी सिस्टर का मदद ले लो। ओके। उन्नति क्वेश्चन पूछेगी, फिर हर्षिता पूछेगी। सर हाउ मेनी मिनट्स आर इन अ क्वार्टर। Quarter, one quarters means 15 minutes. Okay, one quarters में 15 minutes होते हैं, हाफ में 30 minutes होते हैं और 3 quarter में 45 minutes होते हैं। ओके उन्नति। ओके हर्षिता, आपका क्वेश्चंस पूछो। हर्षिता। यस सर। हाँ पूछो। सर जब 24 आवर्स होते हैं तब है ना 24 नहीं होता, 0 होता है। हाँ 0 होता है तब, तो उसके बाद में 1 2 3 फिर से शुरू होता है। जब हम 23 आवर्स और 59 मिनट होता है उसके बाद में 0 आ जाता है ना। फिर उसके बाद 0 59 होने के बाद 12 PM हो जाता है दोपहर। हाँ, और इसके बाद में और किसको, गौरी कुछ पूछना चाहती थी। गौरी अभी जोर से बोलो, मुझे आवाज नहीं आती आपकी। गौरी जोर से बोलो। सर 24 रात के 24 से लेकर कितने देर तक नाइट होती है। रात के 12 o'clock हो गए, तो रात के 12 o'clock से इन जनरल मॉर्निंग 6 o'clock तक नाइट ही होती है ना। और हमारे यहाँ पे सनसेट होता है, हमने प्रीवियस पीरियड में डिस्कस किया था, इवनिंग 6 o'clock के बाद में, शाम के 6 बजे से लेकर नेक्स्ट डे मॉर्निंग 6 o'clock तक नाइट होता है। इसको हम अंधेरा बोलते हैं या रात बोलते हैं। और मॉर्निंग 6 o'clock से इवनिंग 6 o'clock तक डे टाइम होता है। सही है ना गौरी? ओके, तो अभी म्यूट करो, आपका बहुत इको हो रहा है गौरी। जनित बहुत शांत बैठा है। जनित कुछ पूछना चाहता है? जनित ओके शांत। ओके सिद्धि गोड से आप बोलो अभी। आप बीच बीच में कुछ आवाज आ रही थी। सिद्धि गोड से आप बात करो अभी। यस। बात करो। सुबह के 5 बजे। हाँ बराबर है। उसको क्या बोलते हैं? सुबह। हाँ जेनी, मैं सिद्धि का आंसर दे रहा हूँ। मॉर्निंग 5 o'clock मतलब जब हम 12 आवर्स में बोलेंगे तो उसको AM बोलेंगे। मॉर्निंग 5 o'clock या 5 AM। यदि हम उसको 24 आवर में बोलेंगे तो 5 hours बोलेंगे। और जब हम 12 आवर्स में लिखेंगे तो उसको AM लिखेंगे, मॉर्निंग के 5 AM। समझ में आ गया सिद्धि? यस सर। ओके वेरी गुड। हर्षिता, जो मैंने शीट भेजी उसको ध्यान से लिखना है, ठीक है हर्षिता? ओके सर। ओके सिद्धि। ओके समीर। गौरी नेटवर्क देखो। हाँ सिद्धि बोलो।
बाय सर। बाय बाय बाय। हम अभी मंडे मिलेंगे। बाय बाय। Bye, sir. Have a nice day. गुड डे।